There, of course, Delhi Cabinet Minister Atishi mounting a big attack against the Bharatiya Janata Party. She has just addressed the media and she has in fact alleged that the BJP approached her to join them. And if she does not do so, then the ED will arrest her as well. She has stated that Prime Minister Modi and the Bharatiya Janata Party have resolved to finish the Aam Aadmi Party and they've already arrested the top brass of the party. And their next agenda is to arrest 4 more ministers and leaders, including her, Saurabh Bharadwaj, Durgesh Pathak and Raghav Chadha. She has also stated that she's been told that ED will raid her premises and has again emphasized that the Aam Aadmi Party is not scared of threats. ED has of course earlier stated that Kejriwal had stated that Vijay Nair was in correspondence with Atishi and Saurabh Bharadwaj. This statement had been given in the court yesterday. She has addressed it during her speech today. And she has stated that they have been giving this statement for the last 1.5 years. Meanwhile, she stated that BJP is also feeling threatened because the Aam Aadmi Party is united and strong and they thus want to arrest the next line of leadership. She has reiterated that Arvind Kejriwal has not been convicted and has emphasized that he enjoys overwhelming majority of the Delhi Assembly. She has further slung pot shots at the centre, stating that Operation Lotus has been a standard procedure of the Bharatiya Janata Party. Big allegations being made, explosive allegations being made by Atishi this morning. She has stated that the BJP wanted her to join them. But of course, she's also reiterated that the central agencies wish to arrest the 4 other key AAP leaders, including her, Saurabh Bharadwaj, as well as Raghav Chadha and Durgesh Pathak. Meanwhile, joining us on the broadcast is Anil Kumar Bajpai, who is a BJP MLA in Delhi. Good morning, sir. Thank you for joining us on News X. Atishi has just spoken to the media. She's made some very tall claims. How would you respond to her? जी तो झूठ बोल रही है 100%। और अगर वो इन पे इतनी बड़ी जानकारी है तो वो बताएं किस आदमी ने उनसे बात की कि आप बीजेपी ज्वाइन करें। ये तो सिर्फ मुद्दे को भटकाने वाली बात कर रही है और वो समय समय पर झूठ बोलती रहती है। उनकी आदत है झूठ बोलने की। और जब कल ईडी ने उन पे आरोप लगाया है तो वो समझ गई है कि चार्जशीट मतलब उनको सम्मन दिया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी। तो इस सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बोल रही है। और इतना ही अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि मेरे पास ऑफर आई है तो नाम बताए कितने दिक्कत है मीडिया के सामने और पत्रकारों के सामने इनको नाम बताना चाहिए, खुलासा करना चाहिए। क्यों नहीं किया पता नहीं। हम समझ रहे थे क्या खुलासा करेंगी। अरे ये तो उनकी आदत है, वो समय समय पर करती रहती है। जी, जो आंकड़े हैं दिल्ली असेंबली में, उन्होंने इसके बारे में भी बोला है और बोला है कि दिस इज इन फेवर ऑफ द आम आदमी पार्टी। बट अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की ये जो स्ट्रैटेजी है कि ये काम करेगा दिल्ली के वोटर्स के साथ? नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है और मैं तो 5 साल उनकी पार्टी से विधायक रहा हूँ। मुझसे ज्यादा कौन उनको पूरी फैमिली को उनको जानता है। और दिल्ली की जनता पे कोई असर नहीं पड़ेगा जिस तरीके से शराब नीति को बदला गया। और बाद में जब बीजेपी ने सड़कों पे प्रोटेस्ट किया, हम सभी 8 विधायकों ने, उस समय सरकार जब जागी तो उन्होंने पुरानी शराब नीति को जो नए लाए थे उसको बदल के पुरानी शराब नीति में ला गए। 5% से कमीशन बढ़ा के 12% कर दिया गया। एक के बाद एक फ्री कर दी गई। शराब की बोतल में पड़ा जैसे मेरा सा लग रहा था। और दिल्ली की जनता में दिल्ली की जनता की बहनें, हमारी माताएं सब दुखी थी। और केजरीवाल को तो हाय लग गई उन लोगों की। और आज अगर उन्होंने ये किया है तो मैं समझता हूँ उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। और आसमी हो या सौरभ भारद्वाज हो। और सरस्वती माँ जो है वो जमानत एक बार जरूर बैठती है और वो कह रहे थे हम जेल से सरकार चलाएंगे।
तो समय आ गया, माँ सरस्वती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, चलाए, कौन मना करता है। And one last question, sir. Atishi has also stated that the arrest as well as the extension of Arvind Kejriwal's custody has been done deliberately so that he cannot campaign for the Aam Aadmi Party in the upcoming Lok Sabha polls. Now, it is the court that has not granted bail. It is the judiciary that has observed that Arvind Kejriwal is a highly influential person, and its likelihood that he can influence witnesses to tamper with evidence. This is a statement by the court. Do you think this will accrue well with the electorate, or will they see through the Aam Aadmi Party strategy? देखिए, ईडी ने उनको बहुत समय दिया है, और जब पिछली बार उनको जब अरेस्ट करके ले गए तो हाई कोर्ट ने पूछा उनसे, ईडी से, कि क्या आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है, वो हमको दिखाइए। जब ईडी ने उनको प्रूफ दिखाया तभी तो हाई कोर्ट ने कहा, उन्होंने, हमारे न्यायाधीश जी ने, कि भाई आपने इनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। और ईमानदारी का और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले, की वादा करने वाले और कानून में, व्यवस्था में विश्वास करने वाले, और तो IAS रहे हैं, उनको तो संविधान का, कानून का पालन करना चाहिए। और अगर वो ईमानदार होते तो जब पहला सम्मन आया था तभी उनको पेश हो जाना चाहिए था, और वो सिर्फ टाइम खींच रहे थे। और ऐसा नहीं है कि केवल आरती जी आरोप लगा रही है कि लोकसभा के चुनाव में कंपेन नहीं किया जाएगा, इसलिए वो इस तरीके का गिरफ्तार किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और न्यायालय अपना काम कर रहा है और ईडी अपना काम कर रही है, संवैधानिक संस्था है, कोई भारतीय जनता पार्टी की संस्था थोड़ा नहीं है। इससे पहले भी ईडी थी, कांग्रेस का जब टाइम था तब ईडी नहीं थी क्या ये। और ये बिल्कुल है, ये सिर्फ लोगों की संपत्ति गेन करने का एक बहाना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। और दिल्ली की जनता समझ गई है, और सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और जब भी जैसे वो अब वो सबका नाम क्यों ले रही, अरे भाई ईडी ने तो कहा है, सौरभ भारद्वाज जी का नाम लिया, आज वो कह रही है दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, राघव चड्ढा का भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमारे करीबी लोगों की रेड की जाएगी। ये सिर्फ दिल्ली का मुद्दा भटकाने की और पूरी जो है सिंपैथी लेने का एक मामला है, ऐसा नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, हम वो काम नहीं, हमारी पार्टी वो काम नहीं करती है जो कांग्रेस के लोग किया करते थे। यही केजरीवाल जी कांग्रेस को कितनी गालियां देते थे, क्या क्या नहीं बोला, आज उन्हीं लोगों से हाथ मिला लिया, तो आज उनका राजनीति का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया है, और दिल्ली की जनता सब देखती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.